Good morning, students. Today we will continue with the Unit 1, and the topics which we are going to discuss today are indirect method for estimation of very small distances, for example, to find the size of the molecule, and we will discuss some numericals. सबसे पहले हम बात करेंगे estimation of very small distance, that is size of the molecule of the oleic acid. Now, what is oleic acid? What is its formula? Oleic acid is a soapy liquid with large molecular size, approximately equal to 10⁻⁹ meter. और इसका जो molecular formula है that is C17H32COOH. To measure this size, what we do? हम क्या करते हैं? We take 1 cubic centimeter of oleic acid and mix it with alcohol to prepare 20 cubic centimeter of the solution. 20 cubic centimeter solution prepare करने के लिए हम 1 cubic centimeter of oleic acid को alcohol के साथ mix करते हैं. Then we take 1 cubic centimeter of this solution and then mix it with the alcohol so that जो total solution again it becomes 20 cubic centimeter. अब solution of oleic acid in alcohol will have the concentration equal to 1/20 into 20, that is equal to 1/400. Means solution of oleic acid in alcohol with concentration 1/400 is prepared. ठीक है. इसके बाद हम क्या करते हैं? We take a large trough of water. हम एक ट्रफ लेते हैं, पानी है उसमें, and we sprinkle some lycopodium powder on the surface of water. Lycopodium powder is insoluble in water, and we pour n drops of this solution, each of volume V, मतलब हर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो V है, on the surface of the water. हमने pour की ड्रॉप्स n ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन हमने पोर की और हर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो V है. तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया? NV. और इस सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना हुआ? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन वाज 1/400 इन दिस सोल्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन द सोल्यूशन विल बी NV/400. अब जब ये सोल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जब इसकी n ड्रॉप्स को हम सरफेस ऑफ वाटर में डालते हैं ऑन विच लाइकोपोडियम पाउडर हैज़ बीन स्प्रिंकल्ड, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है. इट स्प्रेड्स फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस T मान लीजिए. और इसका व्हाट वी डू देन, व्हाट हैपेंस देन, जो अल्कोहल है उसमें से वो इवेपोरेट हो जाता है और वी आर लेफ्ट विद ओलिक एसिड. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम क्या करते हैं? उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. क्योंकि ये जो सोल्यूशन है जब ये स्प्रेड करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इट फॉर्म्स ए सर्कुलर लेयर. तो वी फाइंड द एरिया. वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन द लेयर इज, अब थिकनेस उसका T है, एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? Area into thickness, it becomes volume. And we have already calculated from the equation 1, volume of oleic acid in the solution is NV/400. Equate कर देंगे इसमें से thickness NV/400 you will get into area. ये आ जाएगा आपके पास thickness. And if we assume कि जो थिन लेयर, जब ओलिक एसिड और अल्कोहल का सोल्यूशन हम डालते हैं पानी के ऊपर, तो जो लेयर बनती है, द थिन लेयर इज अज्यूम टू बी 1 मॉलिक्यूल थिक. तो इसका मतलब ये जो थिकनेस हुई T, इट विल गिव अस द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ओलिक एसिड, एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस इट कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ meter. I am repeating this. What is the method to measure the size? Take 1 cubic centimeter of oleic acid, mix it with alcohol to prepare 20 cubic centimeter of the solution. Then you take 1 cubic centimeter of
this solution and mix it with alcohol to prepare 20 cubic centimeter of the solution again. Now solution of oleic acid and alcohol will have the concentration equal to 1/400. After that, take a large drop of water and sprinkle some lycopodium powder on the surface of water. After that, pour n drops of this solution of volume V each on the surface of water. Volume of n drops of the solution is NV, क्योंकि एक का वॉल्यूम V है तो n drops का कितना होगा NV. So because the concentration of oleic acid in the solution is 1/400, so volume of oleic acid in the solution will be NV/400. This is equation 1. Now the solution, as I told you earlier, that solution of oleic acid spreads fast on the surface of water and forms a thin layer of thickness T. Let's say alcohol जो है वो evaporate कर जाता है and you are left with oleic acid layer. With the help of microscope, we find the area. Volume of the oleic acid in the layer will be now, area is, let's say we have found the area as A, thickness is T, area into thickness, it comes out to be volume, which is equal to NV/400. इक्वेट किया तो T का वैल्यू आ गया NV/400 इंटू A. और हम अगर ये अज्यूम करें कि जब ये सॉल्यूशन स्प्रेड करता है तो जो थिन लेयर बनती है ओलिक एसिड की, उसका जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, देन T विल गिव अस द size of the molecule of oleic acid. It comes out to be of the order of 10⁻⁹ meter. This is how we measure very small size of the molecule of oleic acid. After this, we come to the next part, that is numericals based on this units and measurements, parallax method. Let's talk about these numericals. Before we come to numericals, there are certain relations between the units which we are to discuss before we can start with the numericals. सबसे पहले तो आपको जो पता है, मैंने आगे भी एक बार बताया था कि रेडियन जो है इट इज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एंगल. 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 आर्क लेंथ, 1 आर्क लेंथ, ये 1 यूनिट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, 1 रेडियस, दिस 1 रेडियस. Remember that formula we always use, theta is equal to L upon R. और अगर हमारे पास सर्कल ऑफ रेडियस है, पूरा सर्कल है, रेडियस R, सर्कल ऑफ रेडियस R, देन हाउ मेनी रेडियंस आर देयर? वी हैव आर्क लेंथ कितना हो गया 2πr टोटल, 2πr. रेडियस कितना है R, R गेट्स कैंसल्ड विद R, यू गेट 2π रेडियंस. और जो यूनिट्स यूज होते हैं, द अदर यूनिट्स विच आर बीइंग यूज्ड एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद रेडियंस. We know that 360 degree is equal to 2π radian. तो 1 डिग्री कितना हुआ 2π अपॉन 360 एंड कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा π/180 रेडियन. और इसको भी हम कैलकुलेट करें, पाई का वैल्यू पुट करें 22/7 एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी 1.746 into 10⁻⁻2 radians. This is 1 degree is equal to 1.746 into 10⁻⁻2 radians. इसके बाद आता है सेकेंड जो है 1 arc minute. This is how we denote this, 1 arc minute. 1 minute is equal to 1/60 degree and 1 degree is equal to, as we have calculated, this is equal to π/180 radian. तो 1/60 डिग्री कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो आपके पास आ जाएगा 2.91 into 10⁻⁴ रेडियंस. एक और रिलेशन है आर्क सेकेंड का, इसको हम 1 ऐसे 2 बार ऐसे करके, ये है
this is how we have denoted this arc second. Now this is equal to 1 second is equal to 1 by 60 minutes and 1 by 60 minute is equal to 1 by, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by 60 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा, ये टोटल आ गया डिग्री, ये वाला था ना 1 मिनट इज इक्वल टू 1 by 60 डिग्री, तो 1 by 60 मिनट विल बी इक्वल टू 1 by 60 इंटू 1 by 60 डिग्री। और 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 से, तो 1 by 60 इंटू 1 by 60 दैट विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, एंड यू विल गेट 4.85 इंटू 10⁻⁻6 radians. This is how these are the units which are being used, and this is how these are related with each other. How this is 1 degree is equal to 1.746 into 10⁻²2 radians. 1 minute is equal to 2.91 into 10⁻⁴ radian. 1 arc second is equal to 4.85 into 10⁻⁻6 radian. After this we come to the numerical problems. We'll start with the first numerical, that is the moon subtends an angle of 57 minutes at the baseline equal to radius of the earth. What is the distance of moon from earth? Given radius of the earth is 6400 किलोमीटर। अब इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास है, लेट अस से दिस इज मून, दिस इज सबटेंडेड एन एंगल 57 मिनट्स एट द बेस लाइन ए बी। बेस लाइन मीन्स ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस आपस में 6400 किलोमीटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का, मून से लेके अर्थ तक का हमने डिस्टेंस निकालना है, and this moon is subtended an angle of 57 minutes at the baseline AB is equal to 6400 किलोमीटर, राइट। अब थीटा कितना है, 57 मिनट, मिनट को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 57 by 60 डिग्री, और हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो यू विल गेट 57 by 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये एल है, ये आर है, और ये थीटा है, तो फॉर्मूला ऑलवेज वी यूज दिस फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आर इज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अब तो हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, आर इधर आ जाएगा, एल अपॉन थीटा नीचे आ जाएगा। एल कितना है, लेंथ ऑफ द आर्क 6400 किलोमीटर बेस लाइन, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶। थीटा कितना है, 57 अपॉन 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। पुट ऑल दिस वैल्यूज, इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट आर इज इक्वल टू 3.86 इंटू 10⁸ मीटर। ये न्यूमेरिकल करके देखना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस खुद कीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। ये एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन, ये जो वैल्यू है दिस इज 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड्स के आर्क सेकेंड्स के बराबर है। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो इसको आपने एस मान लो, डी ले लो, डजंट मैटर। नाउ व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। अब हमने ये ए बी निकालना है। हमने पिछली जो लेसन था, पिछला लेक्चर था, उसमें हमने, अगर आपको याद होगा, हमने कैलकुलेट किया था टू फाइंड द साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, रिमेंबर दैट।
and we calculated AB is equal to S theta. That is why I have written AB is equal to S theta, where S here is D given. Remember that? याद है आपको? तो थीटा की जो वैल्यू है वो है 1920 सेकेंड्स, और जो 1 आर्क सेकेंड है अभी हमने पीछे किया, दिस इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन अपने कैलकुलेट किया. तो 1920 सेकेंड्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया. ए बी इज इक्वल टू एस थीटा. सो यू हैव नाउ वी हैव दिस गिवन एस विच इज इक्वल टू डी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. थीटा वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, ये हमने कैलकुलेट किया 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियंस. मल्टीप्लाई कर दिया डायमीटर ऑफ द सन, ये जो साइज ऑफ द सन है दैट कम्स आउट टू बी 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर. ये बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है. जो पिछला लेक्चर आप देखिएगा एक बार, तो उसमें हमने कैलकुलेट किया था साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. एग्जैक्टली दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल. इसके बाद है थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल. आई विल जस्ट स्पीक आउट द न्यूमेरिकल्स, आप इसको सॉल्व करना, और ये जो थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये आप खुद करके देखना. न्यूमेरिकल क्या है? द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the 2 directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the Earth to be about 1.276 into 10⁻7 meter, compute the distance of the moon from the earth. This is one numerical which you are supposed to do. And next numerical is the distance of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. If the angular diameter of the sun is 2000 second, find the diameter of the sun. This was all about today's lecture. अब आपको क्या करना है? एक तो ये रिवाइज करना है, सारा लेक्चर रिवाइज कीजिए. मैंने पहले भी कहा था लिख के याद करो, आर्टिकल्स को लिख के देखो. एंड दीज न्यूमेरिकल्स, पहले जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उनको एक बार अच्छे से देखो, कैलकुलेशंस करो, और ये जो मैंने न्यूमेरिकल थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल है ये आप खुद करके देखो. In the next lesson we'll be discussing these numericals, and then we are going to start with very interesting topic, that is dimensional analysis. Have a good day.